of chapter of European nationalism, class 10, the revolutionaries. During the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalism underground. Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. To revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight the liberty and freedom. Most of the revolutionaries also saw the creation of nation state as a necessary part of the struggle for freedom. जहाँ तक ये वक्त था 1815 के बाद क्रांतिकारियों का दौर था। इस समय जो लिबरल नेशनलिज्म के लोग जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे, गुप्त रूप से छुपे हुए थे और इस समय कई गुप्त समितियां बनाई गई थी यूरोप के अलग अलग भागों में। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए ये लोग गुप्त रूप से अपना काम कर रहे थे, अपनी विचारधारा को फैला रहे थे। क्रांतिकारी ये मोनार्कियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को ये इसका विरोध कर रहे थे और साथ साथ वियना कांग्रेस के बाद ये लिबर्टी और फ्रीडम के हितैषी थे और ज़्यादातर क्रांतिकारी ये एक अलग नेशन स्टेट्स राष्ट्रीय राज्य की कल्पना में लगे हुए थे। One such individual was Italian revolutionary Giuseppe Mazzini. Born in Genoa in 1807, he became the member of secret society of the Carbonari. As a young man of 24, he was sent into this exile in 1831. He attempting the revolutionary in Liguria. He subsequently founded two more underground society. First, Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Beren, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and German states. Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of mankind, so Italy could not continue to be patchwork of small states and kingdoms. It had to be forced into the single unified republic within a wider alliance of nations. This unification alone could be the basis of Italian liberty. Following this model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland. Mazzini's relentless opposition to monarchy and his visions of democratic republic frightened the conservatives. Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. ऐसे ही कई क्रांतिकारी दलों ने खासकर जुसेपी मैजिनी के नेतृत्व में जिसका जन्म जिनेवा में 1807 में हुआ था, उसने एक सेक्रेट सोसाइटी बनाया। एक सेक्रेट सोसाइटी जिसका जन्म कार्मोरी में हुआ और उसके बाद उसने लगातार अपने साथियों के साथ मिलकर गुप्त रूप से क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देता रहा। अंडरग्राउंड होकर यंग इटली और यंग बेरेन के नाम से वो दो गुप्त समितियां बनाया था जिसमें नौजवानों को प्रशिक्षण दिया था और ऐसे कई गुप्त समितियां बनी पोलैंड में, फ्रांस में, इटली में और जर्मन स्टेट्स में। मैजिनी का विश्वास था, ऐसा मानना था कि ईश्वर ने उसे एक राष्ट्रीय राज्य बनाने के लिए उसे प्रेरित किया है और इसलिए इटली को केवल पैचवर्क से काम नहीं चलेगा, उसे एक इटली का यूनिफिकेशंस भी करनी है और राष्ट्रीय यूनिफिकेशन के साथ साथ इटली में स्वतंत्रता भी लानी है और इसलिए उसने इस मॉडल को चुना। सेक्रेट सोसाइटी बनाकर तमाम नवयुवकों को अपने प्रशिक्षण देता हुआ वो आगे बढ़ता चला गया। इस कार्य को देखते हुए मेटरनिक ने एक बार कहा था कि ये बहुत ही बड़ा दुश्मन है समाज और सामाजिक ऑर्डर का, तो फिर भी ये क्रांतिकारियों ने अपने गुप्त रूप से
यूनिफिकेशन का काम करने के लिए अपनी समितियां बनाते गए, जिसे सेक्रेट सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। Now next topic, the age of revolutions 1830 to 1848. As conservative regimes try to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland. These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers. 1830 से लेकर 1848 के दरमियान यूरोप के कई छोटे छोटे उपद्रव हुए, कई छोटे मोटे क्रांतियाँ हुई, जिनमें कंजर्वेटिव्स के शासनकाल में राष्ट्रीय नेशनलिज्म और लिबरलिज्म को एक साथ चल कर के बड़े बड़े इलाकों में उपद्रव किए गए। इटालियन जर्मन स्टेट्स और ऑटोमन एम्पायर, जिसमें आयरलैंड और पोलैंड भी था, ये सारे लोग क्रांति में शामिल हुए और आगे बढ़ते गए, जिसमें मिडिल क्लास के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेसर थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, मेंबर्स थे, कमर्शियल मिडिल क्लासेस के लोग थे। ये सारे लोगों ने मिलकर ये क्रांति में भाग लिया। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस in July 1830. The Bourbon kings, who had been restored the power during the conservatives' reactions after the 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at this head. When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of the Europe catches cold. The July Revolution is sparked an uprising Brussels, led to the Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands. सबसे पहला उपद्रव या विद्रोह जिसे हम कह सकते हैं फ्रांस में 1830 में हुआ। बॉर्बन राजवंश के राजा के समय में ये कंजर्वेटिव्स वालों का जो रिएक्शन था 1815 के बाद, जिसमें 1815 के बाद जो लिबरेशनरी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज, जो वहाँ का तत्कालीन राजा लुई फिलिप्स को आगे बढ़ाया था, उसे पद से हटाया था। और उसी समय इसके बारे में कहा गया था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस मेटरनिक वंस रिमार्क्ड, मेटरनिक ने एक बार कहा था कि जब फ्रांस को सर्दी लगेगी सारा यूरोप छींकता है। फिर से एक बार सुन लो, जब फ्रांस को सर्दी लगती है सारा यूरोप छींकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि फ्रांस में एक छोटी मोटी घटनाओं का असर पूरे यूरोप में होता था। फ्रांस की छोटी मोटी उपद्रव का असर भी पूरे यूरोपीय महादेश में देखे गए और इसका तुरंत ये प्रभाव देखा गया ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में और यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड में भी। 1830 के फ्रांस के जुलाई क्रांति का असर वहाँ पूरी तरह से देखा गया। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was Greek War of Independence. Greece had been part of Ottoman Empire since 15th century. The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off struggle for independence amongst the Greeks, which began to 1821. Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West European who had sympathized for ancient Greek culture. Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against the Muslim empire. The English poet Lord Byron organized funds and later went to fight the war, where he died of fever in 1824. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece an independent nation. आगे चलकर ये राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत होते हुए शिक्षित वर्ग के तमाम यूरोप के शिक्षित वर्ग और ये सारे लोगों ने मिलकर के ग्रीक यानी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के लिए सारे लोग इकट्ठे होते गए
वो उन दिनों ग्रीस जो था ऑटोमन साम्राज्य के अधीनस्थ था 15वीं शताब्दी में, और वहाँ भी राष्ट्रवादी और नेशनलिज्म विचारधारा के लोग काफ़ी आगे से बढ़े थे। वहाँ उस ग्रीस यूनान को स्वतंत्र करने के लिए ये सारे लोग एकजुट होकर के 1821 में सारे लोगों के सहयोग पाते हुए वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। और इस तरह से इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर कई कवि और लेखकों का सहयोग मिला, और इन सारे लोगों के सहयोग के वजह से वहाँ आखिरकार एक बड़ी संधि की गई 1832 में, जिसे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता है। और इसी संधि के वजह से ग्रीस को आज़ादी मिली और एक स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य के रूप में स्थापित किया गया। टॉपिक will be the romantic imagination and national feelings and hunger, hardship and popular revolt and the revolutionaries of liberals etc. will be in the next classes. Till then, thank you.